سے بچائیں گی نمازیں بے شک تیرے قربان نمازوں کو بچانے والے۔ اب آپ ذی وقار اب آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے ہمارے مہمان شہر آل محمد فخر ملت فخر قوم جناب محترم اسد عباس اسد صاحب آپ سرگودا۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی ان مظہر العجائب تجدون لکا فی النوائب کلو ہم و غم سے ان جلیل بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا ناصر النبی یا ولی الولی یا علی یا علی یا علی المدد 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 ادرکنی 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 فی سبیل اللہ صلوات۔ بس یہی تھا میرا خطبہ، 2 یا 3 رباعیات اور قبلہ کو ممبر، 2-4 جملے مسائل، ایک صلوات با جماعت ہو کر مل کے بلند آواز سے شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بولا کرو، ذاکر کے لیے نہیں ذکر کے لیے بولا کرو۔ جو ذکر میں زبان بولتی ہے نا، مجتہد عالم دین بیٹھے ہیں، 16-17 سال قبلہ بی بی کے روزے پہ رہے ہیں۔ میں آتے رستے میں بھی اکٹھے تھے، میں کہہ رہا تھا قبلہ آپ کا جو مقام ہے وہاں تو ہم نیچے بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ قبلہ میں جملہ دے رہا ہوں کہ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن، بھائی مجھے دیکھنا پیچھے کیا دیکھتے ہو، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں حسین منی پہ مت رک، من الحسین بھی پڑھ، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ مل گئے حیدری، میں نو کروں قبلہ، حسین منی پہ مت رک، من الحسین بھی پڑھ۔ چلو ایک جملہ آ گیا ذہن میں، قبلہ کو سبق سنا لیا جائے۔ اللہ قصیدے قرآن میں محمد کے پڑھتا ہے، تو جو ہے نا آگے اللہ قصیدے باوجی پڑھتا ہے قرآن میں اپنے محمد کے، اپنے رسول کے، توجہ ہے نا آپ کی، گھبرائے تو نہیں، ایک صلوات تو پڑھ لو بلند آواز سے۔ میں نے رباعیاں بند کر دی ہیں کہ صرف سبق دا ایک جملہ سنانا ہے میں نے، پھر زندگی رہی کبھی نظمیں قصیدے سناؤں گا۔ اللہ قصیدے باوجی پڑھتا ہے، کبھی اپنے محمد کے قصیدے پڑھتا ہے۔ محمد نے، توجہ کرو گے صرف 2 منٹ واسطے میں فضائل پڑھنا ہے۔ کبھی اللہ نے دیکھا میرے محمد، مجھے دیکھنا، محمد نے چادر اٹھائی شانے پہ رکھی، اتنا فعل اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قرآن بھیج کے کہا یا ایھا المزمل، میں نو کروں قبلہ، اللہ نے یا ایھا المزمل بھیجی، محمد نے چادر اٹھائی بائیں شانے پہ رکھی، اللہ کو فعل اتنا پسند آیا، کہا یا ایھا المدثر۔ اللہ توجہ ہے نا، سیر ہلا دو اگر بولن واسطے زبان نہیں ملی، ہو سکتا ہے بعض لوگ نہ بول سکتے ہوں، اللہ نے زبان نہ دی ہو، گنگے بھی تو بندے ہوندے نے نا۔ پچھلی دفعہ ایک مجلس میں لاہور گامے شاہ میں قبلہ میں پڑھ رہا تھا نا، تو ایک سامنے بندہ دیکھنا، میں نے سمجھا یہ گنگا ہے، میں نے کہا بھائی خدا تجھے زبان دے، بندے آ توڑ تو پہلے ذاکر واسطے بڑا بولدا رہا ہے، تو یہ تو اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے نا کہ حسین کا ذکر، حسین کے نانے کا ذکر ہو اور بول نہ سکے بندہ، گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی مانگا کرو، یا رسول اللہ ذاکر تیرا ذکر کرتا رہا، میں چودھری بن کے بیٹھا رہا۔ یہ چودھری بننے والی جگہ نہیں، یہاں پہ نبی بیٹھتے ہیں، یہاں پہ ملائکہ آتے ہیں، علامہ موجود ہے، ایک ایک جملے دا ذمہ داری دینا، کئی استاد میرے علماء
मेहमान है। मैं जाकिर इस वास्ते लिखाना कुरान जिक्र है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, वैसे मैं अंदरों में भी मौलवी हाँ। मिंबर दी अजमत दी कसम है किबला जी, मैं जुमला दे रहा हूँ। अल्लाह कसीदे पढ़ता है अपने मोहम्मद का, तू वेखदा रहना है, असल मिंबर छोड़ देना है। कसीदे पढ़ता रहा, कभी कहा या युहल मुज़म्मिल, कभी कहा या युहल मुदस्सिर, कभी मोहम्मद के और सर से अमामा सिर का मोहम्मद की जुल्फ़े फिजा में गई। अल्लाह ने कहा वल्लैल इज़ा सजा। और मैं तो पढ़ना ही है ना, तुसा बोलना है, मैं नौकर बाबा जी बुजुर्ग बैठे हो। अल्लाह ने भाईजान कसीदे पढ़े, या युहल मुदस्सिर, एक सलवात तो पढ़ो बुलंद आवाज से। मैं नौकर हूं तुम्हारा, बिल्कुल नौकर हूं। तो टाइम में लगता है 3 मिनट हो गए ने, 10 दी किबला ने देते ने। अल्लाह कसीदे पढ़ता रहा मोहम्मद मुस्तफा के, कभी का वल्लैल इज़ा सजाहा, कभी का या युहल मुज़म्मिल, कभी मोहम्मद के घर में ईसाइयों से जब मनाजरा के लिए सूरह अल इमरान पढ़ना, आज मैं 13 सूरत 1-2 मिनट 10 के जानिया ने, ये ना को अंगूठे छाप जाकिर होंदे ने, असी भी हाफिज़ हां, असी भी तफसीर पढ़ रहे हैं, किबला जाए उलमा को लो। मिंबर दी अजमत दी कसम है बाबा जी, कायनात के रसूल को अल्लाह ने कहा मेरा मोहम्मद ईसाइयों से कह दे तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी निसा लाओ, हम अपनी निसा लाते हैं, तुम अपने मर्द लाओ, हम अपने मर्द लाते हैं। ईसाइयों से कह दे कि तुम अपने निसा लाओ। मिंबर की अजमत की कसम, अल्लामा साहब असद जुमला दुआ लेने के लिए पढ़ने लगा है। जब मोहम्मद को कहा ना अल्लाह ने कि ईसाइयों से कह दे, नसारे नजरान से कह दे, घर जाके सूरह अल इमरान खोलना, तुम्हें ये सारे जुमले नजर आएंगे। मिंबर की अजमत की कसम, अब मोहम्मद मुस्तफा आए उस घर में जिस घर में कौन था, काबे का गौहर। मैं तो बोलना ही नहीं, मैं तो आखना ही नहीं, मैं करो काबे का गौहर, बतूल का शोहर, नबी का वजीर, फलके आजम का बदर मुनीर, और तेरा ते मेरा पीर, इस्लाम का सहारा, बेबसों का सहारा, सिर हिलाना, कुरान का अलीम और जन्नत का कसीम, विलायत का वली, शराफत का इफ्तिखार, और मजबूर को जो बनाए मुख्तार। और जिस घर में और जमाने का मुश्किल कशा अली खड़ा था, मोहम्मद आगे बढ़े, या अली, अल्लाह कहता है कुरान की आयत में मोहम्मद मर्द ला, या अली तो मर्द बन के, मैं नौकर हूं तेरा, सलामत रहा, मेरी मेहनत पूरी हो गई, या अली मर्द बन के तू जाएगा। अली फरमाते या रसूलल्लाह मैं तेरा नौकर, और जिसका नौकर शेरे खुदा हो, मिलके एक सलवात पढ़ो ना बुलंद आवाज से। मैं नौकर हूं किबला, शेरे खुदा कह रहे सरकार अली हाजिर। मिंबर की अजमत की कसम, जो सैयद बैठे हो, असद दुआ लेने लगा है, फकत पुरसा देने के लिए आया असद। मिंबर की अजमत की कसम, क्योंकि को है ना जी, ये चेलम का दिन है, पुरसा देना। सिर्फ 2 जुमले और सुनो। अली तैयार हुए, अब निसा की मंजिल, अलामा साहब बैठे हैं, अरबी दान है, मुफक्किर है, मुदल्लिल है। निसा की मंजिला पे शादी माँ भी होती है, अलामा साहब बेटी भी होती है, बहन भी होती है। निसा की बड़ी मंजिलें हैं, बीवी भी है, सारी निसा है ना, जब खवातीन निसा में आ गई। अब निसा की मंजिल पे ये फरूका में मेरा पहला खिताब है 33 सालों में। अगर सारी रात ये लज्जत न रही तो इस फकीर को अता ही नहीं हुई। मुसल्ले पे खैरात लेने वाला सद कहता है कि जब निसा की मंजिल पे मोहम्मद ने देखा, जब मर्दों की मंजिल पे अली को ले लिया, अब निसा की मंजिल पे मोहम्मद उसके करीब पहुंचे जो खातून जन्नत थी, और वक़्त की सदीका, कायनात की सदीका, कायनात की मुअज़्ज़िमा बेटी जनाब फातिमा तो ज़हरा के करीब। अब मोहम्मद करीब पहुंचे, कहा मेरी बेटी बन के भी जाएगी, हसनैन की माँ बन के भी तू जाएगी, अली की बीवी बन के भी तू जाएगी। और शाहजी निसा
की मंजिल मुकम्मल हो गई, निसा की मंजिल अब मुकम्मल होगी। कुरान की आयत है ना भाईजान, कुरान कह रहा है ना, अल्लाह कहता है मर्द ला निसा ला। अब कुरान की तीसरी जो मंजिल है इस आयत में अल्लामा मौजूद है, अल्लामा साहब की मौजूदगी में असद एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है तीसरी मंजिल है कि मोहम्मद ईसाइयों से कह तुम अपने बेटे लाओ। और तो समझना उसे जरा मेरे नाल चल रहा है, मोहम्मद ईसाइयों से कहे तुम अपने बेटे लाओ। अब कायनात के रसूल ने शाह जी देखा आसमान की तरफ, मेरे अल्लाह तूने बेटे दिए नहीं मुझे, तवज्जो करना अल्लामा साहब ये दुआ लेने वाला जुमला, मोहम्मद कह रहे हैं मेरे अल्लाह तूने मुझे सलवात तो पढ़ो बुलंद आवाज से, मैं नो करूं किबला, नो करूं आपका, मैं नो करूं किबला, मैं नो करूं आपका। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखें। मोहम्मद फरमाते हैं मेरे अल्लाह, ऐ जुमला बेटा याद रखना, बच्चों को के लिए स्कूल में जाओ ना तो लोग पूछते हैं कि मोहम्मद के बेटे नहीं थे, मैं बताता हूँ कुरान में मोहम्मद के कौन से बेटे हैं। एक सलवात पढ़ो ना बुलंद आवाज से। कायनात के रसूल ने कहा मेरे अल्लाह बेटे दिए नहीं, तवज्जो मेरी तरफ, इधर उधर न देखना, टाइम बड़ा शार्ट है। मोहम्मद बेटे दिए नहीं, मेरे अल्लाह तू कहता बेटे ला। कायनात के रसूल को आवाज़ कुदरत आई, ये अल्लाह जानता है कैसे आवाज आई, ये हमारा काम नहीं। हमें ये पता है कि यकीनन अपने इश्क के हवाले से ये जुमले हैं, यकीनन कहा गया होगा कि मोहम्मद उसी दरवाजे पे जा जिनके सदके में मैं अल्लाह बेटे देता है। मैं नो करूं किबला, मैं नो करूं किबला, मैं नो करूं आले किबला, मैं नो करूं। कायनात के रसूल फिर आए, या अली अल्लाह ने मुझे भेजा इसी दरवाजे पे है, मर्दों की मंजिल पे भी तू भी साथ चल, निसा की मंजिल पे मेरी बेटवज्जो है ना बेटा, निसा की मंजिल पे मेरी बेटी चलेगी। या अली तू ऐसे कर, या अली ऐसे कर, या अली ऐसे कर, हसन भी मुझे दे दे, तवज्जो करना नियाज़ हुसैन, या अली मैं नो करूं तेरा, हसन भी मुझे दे दे, हुसैन भी मुझे दे दे, हुसैन भी मुझे दे दे। मिंबर दी अज़मत दी कसम है, खुदा करे जुमला जिन्हें मैं करबला दा हमेशा पढ़िया इसी तरह जुमला थोड़े ज़हन च पा जावा, सारी रात इस नौकर वास्ते दुआ करोगे। उस वक्त अली ने हसन का हाथ पकड़ा, हुसैन का हाथ पकड़ के और मोहम्मद के हाथ पे हसन का हाथ रखा, हुसैन का हाथ रख के, और कायनात का मुश्किल कुशा कहता है या रसूल अल्लाह आप हसन भी ले लो, आप हुसैन भी ले लो, अल्लाह मुझे अब्बास देगा। अल्लाह अकबर, या रसूल। हो गया टाइम, बस घड़ी देख ली मैंने, बस हो गया टाइम। ये अल्लाह मुझे अब्बास देगा। क्यों अली अब्बास मांगते रहे? इसी अब्बास के आसरे पे अली की बेटी मदीना छोड़ आई। बेशक अमीर बन के फजाइल सुना करो, अदना सा गदागर हो इस घर का, घर से आए हो ना, जहन में रखो आम मजलिस नहीं होती। कई आयतुल्लाह उज़मा से उनकी तहरीरें पहुंची हैं, कई उलमा हक्का जो हैं मिंबर पे बयान करते हैं कि मासूमीन भी आते हैं मजलिस में। मासूम बैठे हों, किसी के घर मैयत पड़ी हो ना, किसी का बाप मरा हुआ हो, उसे हंसना नहीं होता। किसी के घर किसी की बहन की मैयत पड़ी हो ना, तो मोहल्ले वाले भी कहते हैं यार उसके सामने हंस के ना गुजरना, उसकी बहन दुनिया से चली गई। अज़ादारों, मातमियों, घर से आए हो पुरसा देने के लिए, ये ना देखना मेंबर पे कौन आया है, ये देखना कि ये आया है हमें पुरसा देने के लिए। अली की बेटी तरसती गई है पुरसे के लिए कि कोई तो मुझे हुसैन का पुरसा दे। शाह जी 28 रजब को जब काफिला चला ना, सिर्फ 2 मिनट, हुसैन बादशाह को पीछे से एक आवाज आई, रोना ना है, सर जरूर झुका लेना, हो सकता है किसी के पहलू में
सैयद साजिदीन बैठे हो, मैं नौकर हूँ इस दरवाजे का, मौत आ जाती असद को ये जुमले न पढ़ता। मिंबर की अजमत की कसम, हुसैन ने मुड़ के देखा ना, अम्मा उम्मुल बनीन आपने क्यों जहमत की। उस वक्त अब्बास की माँ ने एक जुमला कहा, शाहजी कहा हुसैन थोड़ी देर के लिए, ये जुमले जो पर्दे में मेरी माएँ बहनें बैठी हैं उनके लिए, खुदारा मजलिस में कभी बातें ना किया करो, खुदारा कभी मजलिस में अपने बच्चों को दूध ना पिलाया करो। हो सकता है किसी के पहलू में मेरी आकाज़ादी सकीना बैठी हो अज़ादाराने मजलों में करबला। उस वक्त हुसैन से कहा, हुसैन तू बतूल का बेटा है, थोड़ी देर के लिए मैं अब्बास और रुकैया को और रसूल के रोजे पे ले जाती हूँ। और मैं माफी मांग के जुमला कहने लगा हाँ, और गाजी को लिया शाहजी और रुकैया बीबी को लेके अब्बास, बेटा बैठ जाओ जहाँ जगह मिलती है, अब्बास को लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोजे पे आई ना शाहजी, इधर उधर नहीं देखना मसाहब में। अब्बास की माँ ने क्या किया, अब्बास अब्बास रसूल के रोजे का दरवाजा बंद करो। और शाहजी रोजे का दरवाजा बंद हो गया। उस वक्त गाजी की माँ ने क्या किया, और जो अब तक नहीं रो सका, और सर से चादर उतारी, उतार के रसूल के रोजे पे रखी और कहा अब्बास और रसूल के रोजे पे अपना दायां हाथ रख के और माँ से वादा कर और सफर में हुसैन से वफा करेगा और बतूल के बेटे से वफा करेगा। और गाजी ने बताया और कहा अम्मा तेरा गाजी तुझसे वादा करता है और जो बच के आएगा उससे पूछना मत भैया। एकदम सीने पे हाथ मार के हुसैन को गाजी का पुरसा देना। और जब ये कहा ना अम्मा जो बच के आएगा ना उससे पूछना और तेरे गाजी ने क्या वफा की। अच्छा जी तेरी इज्जत की कसम, हालत ये थी, मैंने छोड़ दिया मजमून, एक मिनट आखिरी, हालत ये थी काफिला उजड़ के, यही जो दिन है ना, काफिला उजड़ के मदीने के करीब पहुंचा। अली की बेटी ने कहा और मदीना नाने कहा मुझे कबूल न करना, और मैं 72 लेके गई थी और 3 मस्तूरात साथ है। अज़ादारो इतने में क्या हुआ, और बशीर ने मनादी की और टाइम होता तो पड़ता बस एक आखिरी 30 सेकंड के लिए। और जब ये जुमले कहे ना अज़ादारो बशीर ने मनादी की, और मदीने वालों और मदीना उजड़ गया और सैयद उजड़ के रोजी भर के रोला और सैयद उजड़ के वापस आ गए। अज़ादारो ये मनादी सुनी अब्बास की माँ उम्मुल बनीन ने, और उस वक्त बीबी के कानों पे शाहजी माफ करना जुमले छुपाता नहीं, उस वक्त कानों पे आवाज आई और लोगों अब्बास मारा गया और गाजी का नाम आया मातमिया। अब्बास की माँ ने कहा और खामोश हो जा बशीर। और बशीर कहता बीबी कौन है, और लोगों ने कहा बशीर, और नजरें झुका और गाजी की माँ आ गई। और बशीर ने कहा और बीबी पुरसा ले, और तेरा गाजी मारा गया और तेरा अब्बास मारा गया। उस वक्त बीबी ने कहा ना ना मुझे अब्बास का नहीं, और मुझे ये पता और मेरा हुसैन कैसा है। और कहा हुसैन भी मारा गया, अच्छा ये पता और पहले अब्बास मारा क्या हुसैन मारा गया। और बीबी पहले तेरा अब्बास, मैं नौकर हूं तेरा, और पहले तेरा अब्बास मारा गया। उस वक्त अब्बास की माँ ने कहा ये कितने दिन मेरा गाजी लड़ा, और कहा बीबी और तेरे अब्बास को इजाजत नहीं मिली, और किसने नहीं दी, हुसैन और ज़ैनब